क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि मैं अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, हाउ आई कैन स्टार्ट? I would recommend by starting with एक्चुअली हम सऊदी मार्केट के मुताबिक बात करेंगे। Sure, ठीक है, यानी कि आप अभी भी रिकमेंड करोगे कि AWS से स्टार्ट करना चाहिए। सो हाउ आई नीड टू स्टार्ट? लेट्स से यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉपर रोड मैप फॉर मी। only $10 or $12. I think everybody can pay this $10 or $12. But this money, will give them a very good experience. इतना तो बनता है आपका कि अपनी लाइफ में आपको बेसिकली दो अपॉर्चुनिटीज है। आई एम नॉट degrading the guys who are still serving a Pakistan, still in a Pakistan. उसकी कोड या उसकी डेप्थ तभी जानोगे जब एक कोड डेवलप करोगे, आपको उसमें इश्यूज आएंगे, फिर आप उसके बारे में सर्च करोगे यार ये इश्यू क्यों आ रहा है, ये मॉड्यूल क्या है, तो आप फर्दर डिग करते जाओगे उसमें। कर है बिल्कुल, हम मजदूर हैं नहीं तो मजदूरों को इससे कोई इतनी डीप टेक्निकल नहीं जाना चाहिए कि यार कि वो बिल्डिंग बन रही है या नहीं बन रही। सो व्हाट्स द प्रो एंड कॉन्स ऑफ द PR? Assalamu alaikum, welcome back to Name Podcast again. Today we have a very special with us, Muhammad Asif. He's a senior cloud architect based in Riyadh, have a strong experience into cloud migration, cloud security, landing zones, high availabilities, disaster recovery, and a cost optimization. And other than that, there is cloud platform including AWS, Alibaba Cloud, surprisingly, Alibaba Cloud, OpenStack, and Microsoft technologies. But today we are not gonna conversate about just specifically the job market in Saudi Arabia, but we will discuss about some more technical things. Let's say AI infrastructure, cloud computing, and you can say the growing tech market and the practical roadmap where we can grow ourselves in cloud computing. Thank you so much, brother, for your time. You're welcome and thank you so much for your invitation. अच्छा ब्रदर, हम स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि मैं अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, हाउ आई कैन स्टार्ट? Basically, you can start career in the cloud. I would recommend by starting with AWS because AWS is a pioneer in the cloud market. अच्छा, एक्चुअली हम सऊदी मार्केट के मुताबिक बात करेंगे। Sure, ठीक है, यानी कि आप अभी भी रिकमेंड करोगे कि AWS से स्टार्ट करना चाहिए। Exactly. उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो डाटा सेंटर ही नहीं है AWS। Exactly, perfect. See, the reason is that the AWS is a pioneer, and you are a fresh engineer, and you need to get the concepts of cloud. First, you need to understand the cloud. ठीक है। So you will not start from something which is difficult to understand. You will start something from easy, which is easy to understand. ठीक है। And who is leading the market? AWS leading the market. AWS is you can say it, as I mentioned before, pioneer. Okay. They started in 2006 by offering the virtual machines, the other 2-3 cloud services. So their core concepts copied by others. Okay. Even I will use even Google Cloud also. The concept, they are the entrepreneurs in the cloud market. Okay. So everybody is following there. Now as per my experience, the big player in the global are AWS and Azure. Okay. And they are going to come very soon in Saudi Arabia. Okay. Very soon. In 2020, I think Q4 in 2026. 2026. They have announced their launch dates, like launch time frame, like Q4 as you mentioned, 2026. Okay. But maybe they are coming 2027 or mid of 2027. It doesn't matter, to be honest. Okay. But if you are starting the career from now, you should prepare yourself for next 1 year. Okay, let's say how I can start. I'm recently graduated, let's say any university from Pakistan, maybe India, from Bangladesh, and I don't know what I need to do, which one I need to select, AWS, Azure, maybe Alibaba Cloud. So how I need to start? Let's say you can explain about the proper roadmap for me. As I mentioned before, that you can get AWS course from Udemy. There are many platforms. Even many people are giving free learning videos on YouTube. Okay. So you can target the AWS because the terms which they are using, VPC, EC2, I'm using the technical terms, load balancing, Okay. Storage buckets. Okay. All these coming or derived from AWS. Okay. And the similar terms are used by Alibaba. Similar concepts. If you will say, I would like to host a VM on AWS, the similar concept is in
in Azure. The similar concept is in Alibaba. The similar concept is in Google. The only difference, the way you will create, maybe there will be difference in the console. Okay. Nothing will be other difference, you know. Okay. The you say what VPC, virtual private clouds, the subnettings and the VMs, the services will remain the same. Only the difference is in the name. That's why I recommend AWS, because their concepts are easy to understand. Okay. They, as I mentioned before, they started in 2006 and they are leading in the globe. Okay. So you will select any, let's suppose AWS Solution Architect Associate course. Start learning it. There's many courses available on Udemy. Only $10 or $12. I think everybody can pay this $10 or $12. But this money, you know, will give them a very good experience. It's value for money, you know. Okay. You will start this course, do the labs. They provide the labs. Do the labs. Do the certification. You know, invest something on yourself. Okay. And then definitely you will get a job in the market. Okay, so let's say obviously I'm that guy. I have done my all assignments, even my paper into the university by using AI. And now I have planned to start my career into cloud computing when I will go into the AWS to start my, you know, something like what you said, technical things. And I was thinking to use AI to do everything for me. So on that time, what I need to do? You want to use AI or you want to build AI on cloud? No. Actually, I will use AI to deploy any project rather than I will waste my time. Let's say I'm not a DevOps engineer. No. Okay, I have created an application and I can easily create a pipeline to deploy on, maybe you can say GCP, AWS. I can deploy. So what's the difference between that fresher guy and me? Yeah. Okay. So these are two different career paths. Okay. When you will go in a company, you will find two different jobs. One is a guy who is handling the infrastructure for a company. Okay. Okay. One is guy who is deploying this AI applications on that infrastructure. Okay. When you will talk about the company, you cannot go random and deploy your AI application on the cloud. Okay. If you will do this, as you mentioned that you are AI guy Okay. working in a company, you don't have any cloud architect, you don't have any cloud engineer. Okay. You just use Terraform script that Okay. deploy this. You create a Terraform script Okay. that I would like to deploy this application. AI will give you the Terraform script. Okay. You will run the Terraform script. You deploy the applications. Maybe next minute it will be hacked. Okay. Maybe next minute your application is destroyed Okay. because you are not thinking About that. about the infrastructure, how to deploy this application securely on the cloud. Okay. What services will I would like? What services I need to run? Okay. You will deploy the services given by AI. How Correct. we, okay, let's say when I'm starting my career, so it's like a DevOps engineer. DevOps, you can say that, you know. So let's say we will define like how we can separate these terms, DevOps engineer to cloud engineer and cloud engineer to cloud architect. Cloud engineer is a guy who is handling the operations. Okay. Okay, who has experience in deploying the virtual machines, who has experience to deploy the load balancers, Okay. who has experience to deploy maybe firewalls, Okay. okay, the security groups, the other PaaS services, serverless architecture. The cloud architect, the one who designed this application, Okay. who has a broader experience, Okay. who knows, different things, different that the cloud architect is a higher level. Let's suppose he has experience in security, he has experience in networking, he has experience in infrastructure, so he has experience across all these surfaces, or you can say the different departments or components. So he will guide the engineer how to deploy this application, how to make a secure landing zone, Okay. how to make a secure base. This is exactly similar. If you are building your house, one is an architect who is designing your house,
interior or exterior architects, and the one is the guy who is building your a building, who is doing a work from hand. The architect is just sitting. He's just coming, monitoring that everything is happening according to the best practices, according to the architecture. Okay. So this is the difference between the cloud architect and the engineer. But in a starting, a cloud architect do a very hard work. Let's say Exactly. Yeah. Exactly. Cloud engineer later will become cloud architect. Right. The start is the cloud engineer, and then in his career path he will end up with the Okay. architect. So let's say I have done all the certification. What you said in AWS. And you're a fresh guy. Yeah, I'm a fresh guy. Okay. Okay. Then what's the next step after doing a certifications? See, certification is not something you can prove your skills. Like, Okay. I can do 10 of certifications but by just reading, Okay. okay, but just taking the dumps. Okay. So just certification is not a criteria to go into the market and hunt for a job and to become a successful person or successful IT guy. So you need hands-on. You like how you achieve your certifications. My recommendation is to go learn, do the hands-on, create your own accounts. The AWS providing a free account, Azure is providing a free account, Alibaba is providing, Google is providing, everyone is providing a free accounts for fresh, and for even the ones who want to test some applications. Okay. Go do your do your hands-on labs, everything, and then go into the market. So in this scenario you will be confident when you're doing a job, Okay. when you're doing a interview. Okay. So that you have hands-on experience, you have know about the services, and definitely company will give you the chance to start. So let's say I got a job. Okay. I grab a job into a very small services-based company. I have started my career. I'm working over there. It's going to be, let's say, 3 to 4 years. And now I was planning to move to Saudi Arabia. Why do you want to recommend to move to Saudi Arabia? Very good question, to be honest. Okay. Because right now what I feel that Saudi Arabia is lacking in cloud expertise. Why? Why lacking in the cloud expertise? Because as per my experience, 90% or more than 90% workloads are still on premises. Okay. There was no concept of cloud, I think, before 2016 or 17 in Saudi Arabia. Okay. So As that per- means, according to your information or maybe your knowledge, mostly the government sector and other private sector are using Absolutely. on-premises cloud. Absolutely. Okay. And just see that when first hyperscaler came here in Saudi Arabia, maybe 3 to 4 years before Oracle, then Alibaba, last 2 to 3 years. Yes. In 2 years, exactly 2 years, Google Cloud is here. Okay. So how many years? 3 to 4 years. Okay. Yeah, Okay. you're right. And before there was a direction from the kingdom, the government, that no data, PI, personal identification data, can go outside the boundaries of the kingdom. This is the major reason everybody was looking to host application inside the kingdom, and there was no hyperscaler, there was no cloud. There was and there is a local cloud providers, but these are not actual hyperscalers like some companies are. Maybe let's say you can say STC cloud. STC Cloud. Yeah, STC Cloud was there before, but it was a local cloud provider. Exactly. They are running on OpenStack based cloud. Okay. They are not hyperscalers. So now, once and even still here, AWS and Google, Azure, Still not launch. Okay. They will launch. So see, when they launch, everybody start moving to the cloud. Why I say everybody? Because there is a direction from DGA to move to the cloud, and there's no more investments on-prem data centers. So there is something booming in the kingdom, and they need special cloud engineers, cloud architects, and you will see on the LinkedIn many jobs offered by hyperscalers. AWS need AWS solution architects, Azure need solution architects, pre-sales guys, cloud engineers, and these are opportunities by vendors. So just think about when the companies will start moving their clouds,
how much opportunities will come to for cloud engineers and cloud architects. So that means you are saying like there is a good opportunity into the big name. Let's say AWS Azure. If we will try, let's say I have a good experience in Pakistan, let's say more than 5 to 10 years. I'm working as a cloud architect over there. And it's a good chance for me to grab a job here for maybe AWS and other clouds also, right? For AWS and Azure, even if you're not able to crack the opportunity for these vendors, there will be many good opportunities with the good salaries. Okay. Very good salaries. Okay. In the kingdom. So let's say how much I can I can earn. Like I believe for a cloud engineer, he can start his career from 18,000 plus. Okay. And 18,000 plus, when I'm saying it, I'm giving you a very minimum number, okay, where you can start your career. Like you are in Pakistan, Okay. you get an opportunity, and you got this offer. I will recommend you to grab this opportunity, because this even if you get the offer from 12 to 14,000, Okay. I'm giving you a recommendation to grab this opportunity, because this, let's suppose you are getting 14, 12 or 18, this is only for 1 year. Once you are settled in Saudi Arabia for a 1 year period, you can switch a job to another company. Yeah. And It's quite, you can say it's quite easy for me, like to, switch the company. exactly. If I have a good experience, Exactly. maybe any company I have a experience, and it's easy to move another company. Obviously, they will see I have some experience here in Saudi Arabia. Absolutely. And it's easy for them as well to hire a person working here, having experience here, rather than by calling from Pakistan, by giving him a visa, So it will be a opportunity for you after 1 year to go to hire, to get a raise, 40%, 50%. I know some some guys, to be honest, they came on very low salaries from Pakistan, maybe 14, 15, and now he's getting 35,000 plus, Okay. 35,000 plus salary. Okay. And he is now looking to get a PR. He's, going to apply it. He get a jump maybe for 26, 27,000 Okay. Mashallah. from after first year. Then after 2 weeks, another company approach him. He says, now I am hired on 27 Okay. and I need a 35 plus. He gave him a 35 plus. Is it easy to switch, like if you have accept the contract and Yes, in probation period. Okay. Now a probation period is 6 months. Okay. Before it was a 3 months. Right. So in this probation period, you can switch a job, or And you even company can lay off me. exactly in 1 day notice period. Both of this option for both of you, for the company and for you as well. Okay. So in a 6 month, if I will get a better opportunity. Definitely. This guy, I'm giving you a real example, Okay. He moved from 18 or maybe 15, I don't know, Okay. to 35 in 1 month. Okay. How much? 100% raise. Okay. So let's say I have a good experience in Pakistan, and what's the path for me to come here? Let's say like how I can grab the job. To be honest, search on the LinkedIn, like keep. How you come here? I came here. I was doing a job in Islamabad. Okay. A company hosting controller. So we were offering some services to a company here in Saudi Arabia. So, and they have a partner in Pakistan. Okay. So that partner hired me in Pakistan. So I worked 2 years in Karachi, the company named iVolve. Now they registered here in Saudi Arabia as well. And once I, joined iVolve, after 2 years, Okay. जो यहाँ पे कंपनी थी उन्होंने मुझे ऑन साइट बुला लिया था, So ऑन साइट कॉल at कर which लिया। salary means आपने क्यों सोचा कि यार मैं चला आता हूँ यहाँ पे सऊदी अरेबिया? यानी कि क्या आपको डिमांड मिली कि यार वहाँ से ज्यादा थी, कितने % ज्यादा थी? I cannot even compare, to be honest. Let's suppose you are, let's suppose any Let's say between 10 to 15 or 10 to between 20, 10 to 15 to 15. 20. 10 to 15. Okay, so that means you also have 7 years before, I was come here Okay. on a salary
12 to 15, let's suppose. ठीक है, यानी कि जो आपने एग्जांपल दिया है वो करेक्ट है। Exactly. I'm giving आपके you ऊपर example. है। ठीक है, यानी कि इट्स नाइस, मतलब कि Let me give you my salary in Pakistan, just to as a what I can say that so people can know, जो fresh graduate हैं उनके लिए एक मैं रियल एग्जांपल अपनी दे देता हूँ। मेरी पाकिस्तान में सैलरी थी 120K, 1,20,000, 1,25,000। ठीक है, ठीक है, कैश इन हैंड। ओके, और जब मुझे यहाँ बुलाएगा तो मेरी सैलरी थी 12 to 15,000। अब आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक हाउ मच 6 to 7 लाख बन जाते हैं तकरीबन। 6 to 7 लाख। सो 600%, करेक्ट? 6 to 700, यानी कि 6x आपने ग्रैब किया। 600x, not 6x। ठीक है, और अच्छा मुझे ये बताएं, इट्स डिफिकल्ट कि यार इस सैलरी के अंदर सरवाइव करना यहाँ पे। लेट्स से अगर मैं फैमिली को बुला लेता हूँ, In let's suppose if your salary is 1,500, बिटवीन 10 to 15। like if you are a newly married and if salary is 10 to 15,000, you can manage ओके, until your kids start going to school. राइट Here is difficult thing is to manage the kids fee. राइट, Schooling बहुत महंगी है यहाँ पे। ठीक है। हाउ मच लाइक? टू बी स्कूलिंग बहुत महंगी है, मतलब अगर लेट्स सपोज जो मिनिमम एक नॉर्मल स्कूल भी होगा वो आपसे KG1 का 13 to 15,000 लेगा ही लेगा एनुअली। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके दो बच्चे, लेट्स से एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1200, 1000 to 1200, राइट, पर मंथ। around you can say that. Not average, this is the minimum range you are giving. I think the minimum is This is 1,200. Okay. Okay, so let's say you said the best approach is to use LinkedIn to grab a job. LinkedIn, there's other, I think there are other Like Bait and Bait, yes. Reed and other platforms. yes, but keep searching. This is not the solution, brother. Like, it's really difficult to come here. True. Means हम 100 में से वो वाहिद 2 बंदे हैं, यानी कि 1% हम उनमें आते हैं कि जिनको वहीं से अपॉर्चुनिटी मिली है और वो यहाँ पे आ गए। Exactly. ठीक है, बट इट्स डिफिकल्ट कि वहाँ से मूव करना। व्हाट डू यू थिंक, एक टर्म होती है यहाँ पे आज़ाद वीज़ा, उस पे आना चाहिए? Well, very difficult question. आज़ाद वीज़े पे मेरे ख्याल से एक दफ़ा रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। और इसमें ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि हिजरत में बरकत है, तो आपको हिजरत करनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको 5 साल पाकिस्तान में हो गए हैं, ठीक है, और 5 साल से आपने सर्टिफिकेशंस कर ली हैं, एक अच्छी सर्टिफिकेशंस कर ली हैं। जैसे आप लेट्स सपोज लिनक्स इंजीनियर हो तो आपने रेड हैट की सर्टिफिकेशंस कर ली हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आपने नेटवर्क की सर्टिफिकेशंस कर ली हैं, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यू शुड गेट वन चांस, यू शुड गिव अ वन चांस टू योरसेल्फ। इतना तो बनता है आपका कि अपनी लाइफ में आपको बेसिकली 2 अपॉर्चुनिटीज है। आई एम नॉट डिग्रेडिंग द गाइज हु आर still serving a Pakistan, still in a Pakistan, and they have a good experience. But I'm giving a suggestions who are looking big, who want to improve the lives of themselves for the family also, for the families as well. जो बेसिकली जो जीरो स्टार्ट कर रहे हैं, एक वो लोग हैं पाकिस्तान में जो वेल सेटल्ड हैं, जिनके वालिदैन का एक अच्छा बिजनेस है, वो एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, एक जो है ना इनकम सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है, प्लस वो जॉब भी कर रहे हैं. तो आई विल नॉट रिकमेंड देम टू कम हियर और टू गो एनीवेयर. ओके, बट द गाय जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसके वालिदैन उसकी मुश्किल से फीस जमा करवा रहे थे, बहुत मुश्किल से, कहीं से शायद लोन लेके कर रहे थे, या वो शायद वो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था. ठीक है, अब उसको 4-5 साल हो गए हैं और उसने अब सारी ज़िंदगी वो जॉब मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि वही करता रहे और वहीं पे रहे. ठीक है, देयर इज अ वेरी फ्यू चांसेस टू ग्रो अप देयर और टू इंक्रीज देयर सैलरीज. लाइक लेट्स सपोज वो अगर पाकिस्तान में 3 लाख भी ले रहा है तो मंथली वो कितना सेव कर रहा होगा? 1 लाख. ठीक है, एक मैं मोबाइल यूज करूंगा, मंथली वो लेट्स सपोज 1 लाख सेव कर रहा है, तो महीने का कितना यूज कर रहा होगा? 12 लाख. सॉरी, साल का.
तो 5 सालों में वो कितना सेव करेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 60 लाख, मतलब एक सेव कर सकता है। इट्स अ गुड हैंडसम अमाउंट, ठीक है। लेकिन अगर उसने वो घर भी बनाना है, वो जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, उसने अपने वालिदैन के कुछ ख्वाब भी पूरे करने हैं, तो वो थोड़ी सेविंग करके एक अपने आप को एक चांस दे, आइस हो दिया, जॉब सर्च करे, और लेट्स सपोज वो 7,000 8,000 से भी स्टार्ट करता है, आफ्टर 2 years आई एम गारंटिंग दिस ही विल बी 25+। ठीक है, आई एम श्योर कि ये एग्जांपल में आपसे मैंने आपकी सैलरी नहीं पूछी, ठीक है। 7-8 से स्टार्ट नहीं करना, 10 से नीचे नहीं काम करना। बट सही, ये भी सही होगा। 10 से नीचे नहीं, अगर लेट्स सपोज वो अगर आजाद वीजे पे आया हुआ है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वापस चला जाए। नहीं, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हियर वो उम्रा करे और वापस चले। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा ये खिलाफ वो लोग हैं जो कि मार्केट खराब कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, देखें मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है, 2500-3000 पे काम कर रहे हैं। देखें वो कितनी अरसे के लिए वो 25-30,000 ले रहे हैं, आपने वो डिफाइन करना है, ठीक है। अब एक बंदा पाकिस्तान से अपनी 4 साल की सेविंग लेके यहाँ आया है, ठीक है। अच्छा, मुझे सुने तो सही। आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं लोग, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, प्लान कर लिया सारा कुछ, ठीक हाँ, है, प्लान कर, आपने बताया मार्केट भी बड़ी बूम कर रही है, बिल्कुल ठीक है, सारे लोग ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आर यू श्योर, क्योंकि आप जॉब नहीं ढूंढ रहे, आपने देखा है मार्केट को एनालाइज किया है कि आप वाकई अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज है, क्यों नहीं अपॉर्चुनिटीज है? आपका कोई दोस्त, मुझे एक आंसर दें क्वेश्चन का। आपका कोई दोस्त आजाद वीजे पे आया, आप समझते हैं कि उसकी अच्छे स्किल्स थे आपके लेवल के, वो 1 साल रहा, उसको जॉब नहीं मिली और वो पाकिस्तान चला गया। 1 साल में तो जाहिर बात है मिल जाती है, तो 1 साल का वीजा वो लेके आएगा ना भाई। वो आजाद वीजा अपना इकामा 1 साल की बनवाएगा ना। लेट्स सपोज 6 months, उस मैक्सिमम वो 6 months मार्केट में बैठा होगा। यार 6 months सर्वाइव करना, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन, यानी कि उसमें खाना, रहना, रिहाइश। यस भाई, आई एम सेइंग दैट फर्स्ट आप सेव करो, उस पैसे को फिर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, राइट, वरना आप फिर उसी लूप में फंसे रहोगे। ओके, लेट्स से अच्छा, आप मुझे ये भी बता दें कि यार ये रिस्क मैं किस एज में ले सकता हूँ, इन बिटवीन 30 to 35 और 20 to 35, या मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ, ऑब्वियसली उनको तो नहीं आना चाहिए जो रिसेंटली ग्रेजुएट, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो किस एज में मतलब कि मैं रिस्क लूँ? अब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, एक रिस्क लेके देख लूँ बस। मेरे ख्याल से अगर आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यानी कि मैं वहाँ पे अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं किसी वेस्ट नहीं कर रहा। मतलब आपको अपने ऊपर थोड़ा एतमाद या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार देख लेंगे, आपको अपने ऊपर एक यकीन होना चाहिए, आपको अपने ऊपर एक। अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा ना कि यार मैं AWS से स्टार्ट करता हूँ, जी ठीक है, और यू सेड इट्स इजी कि मैं AWS से स्टार्ट करूँ, फिर मैं चंक में क्लाउड उस पे अलीबाबा पे भी चला जाऊंगा, फिर गूगल क्लाउड पे भी चला जाऊंगा। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में क्लाउड प्लेटफॉर्म, विच प्लेटफॉर्म द बेस्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी? यानी कि अब मैं ऐसे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे AWS नहीं है, कुछ स्टार्टअप AWS यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं जाहिर बात है मार्केट को एनालाइज करके आऊंगा कि यार वहाँ पे ओरेकल है, गूगल क्लाउड है, तो मैं उसकी सर्टिफिकेशन करूंगा ताकि अगर मैं इंटरव्यू में बैठूं, चलो एज अ इंटरव्यूअर आप क्या क्वेश्चंस करोगे फ्रॉम द कैंडिडेट? डेफिनेटली, अगर वो मतलब अभी AWS तो नहीं है, तो बेसिकली वो क्वेश्चन ये था कि आपने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट करना है। वो हो गया, तो मैंने कहा बेसिकली वो फ्रेश ग्रेड है, उसको क्लाउड का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, उसने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करे AWS से और फिर मूव करे अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स पे, ठीक है। और सऊदी अरब में आपको पता है ओरेकल और अलीबाबा और गूगल 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। मोस्ट अपॉर्चुनिटीज जो हैं ओरेकल की हैं और अलीबाबा क्लाउड की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अलीबाबा की अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसलिए हैं कि अलीबाबा ने कोलैबोरेट किया था STC की कंपनी है, SCCC, सऊदी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, बेसिकली वो पार्टनर है और उनका टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है वो अलीबाबा है, ठीक है, फ्रंट पे SCCC ही है, ठीक है। और अब STC है तो STC एक गवर्नमेंट कंपनी है, उनका रिलेशंस हैं, तो दे हैव अ गुड बिजनेस और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अलीबाबा भी यहाँ पे। तो आप ओरेकल, अलीबाबा और गूगल भी, क्योंकि 2 साल से यहाँ पे है और गूगल की अपॉर्चुनिटीज़ भी अब आ रही हैं, तो इन तीनों में से अगर आप तीनों, मैं तो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब यहाँ पे हम बहुत फोकस करते हैं कि यार कि ही इज़ AWS एक्सपर्ट, ही इज़ अ गूगल एक्सपर्ट, ही इज़ OC एक्सपर्ट, बट मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो टैलेंट है, जो पाकिस्तान का लड़का है ना, उसके लिए जितनी उसने मार खाई हुई है
हाँ, ठीक है, उसके लिए- रगड़ा आपको पाकिस्तान से हाँ, लगता है। रगड़ा जितना उसने खाया है उसको, उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है कि तीनों प्लेटफॉर्म को जो है ना उसने कंगाला मास्टर करना लगाया, है। देखा ना हो। हाँ, तो वो गूगल, अलीबाबा और ओरेकल पे एक्सपर्टीज लेके आए। इससे क्या होगा कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी रेंज है ना वो बढ़ गई है अब। ठीक है। ठीक है, अब उसका एरिया बढ़ गया है। अब वो अलीबाबा आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस पर भी अप्लाई करेगा, गूगल की आएगी भी तो उस पर भी अप्लाई करेगा, OCI आएगी तो उस पर भी अप्लाई करेगी, तो वो जल्दी उसकी हायरिंग हो सकती है। यानी कि आप तीनों क्लाउड रिकमेंड कर रहे हो कि मैं उसमें कुछ सर्टिफिकेशन वहाँ पे कर लूँ? मैं तो वैसे एक्सपीरियंस, हाँ, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि AWS और Azure की सर्टिफिकेशन भी करो। ठीक है। अच्छा, यानी कि आप एज ए इंटरव्यूअर, ठीक है, आप कैंडिडेट से मेन चीज़ें क्या सवाल करोगे, किस तरह से होगा? मतलब कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है क्लाउड के अंदर, हाँ। मैं आके बैठ गया हूँ आपके सामने, बिल्कुल। आप क्या क्या चीज़ें पूछोगे जो कि यहाँ पे होता है? ओब्वियसली आपने भी कैंडिडेट्स के काफ़ी के लिए होंगे इंटरव्यूज, तो किस तरह से होगा? यानी कि कुछ असेसमेंट टेस्ट होगा या आप नहीं, तो- असाइनमेंट दोगे, किस तरह से होगा? मैं तो भी ना सर, मैंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। ठीक है। मैं असेसमेंट्स अभी नहीं लेते हम लोग। सही है। ठीक है। बेसिकली आप जब क्वेश्चंस करते हो ना और डीप टेक्निकल क्वेश्चंस करते हो तो वो वही बंदा आंसर कर सकता है जिसने एक्चुअल काम किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, आप ट्रबल शूटिंग से जितना सीखते हो ना, अगर आप एक बंदा एक्चुअल किसी कंपनी में काम कर रहा हो, एक किसी इंफ्रा पे काम कर रहा है, जैसे आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, ठीक है, आपने सारी जावा कोडिंग पढ़ ली है, आपने डेवलपर, I'm just giving an example, ओके, ठीक है। तो आप एक्चुअल उसकी कोड या उसकी डेप्थ तभी जानोगे जब एक कोड डेवलप करोगे, आपको उसमें इश्यूज आएंगे, फिर आप उसके बारे में सर्च करोगे, यार ये इश्यू क्यों आ रहा है, ये मॉड्यूल क्या है, तो आप फर्दर डिग करते जाओगे उसमें। ठीक है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो यानी कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट बट नहीं ये है कि मैं टेक्निकली इसको देखूंगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली कितना पानी में है, हाँ, तो उस exactly. हिसाब से फिर मैं देखूंगा यार ये कर लेगा। कर लेगा। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप उससे पूछोगे कि अगर आप एप्लीकेशन में कोडिंग एक बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो उसमें ये इश्यू है तो कैसे रिजॉल्व करोगे? अब वो वही आंसर कर सकता है जिसने कोडिंग की हुई है, राइट, ना कि जिसने खाली सर्टिफिकेशन की हुई है और उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपके क्वेश्चन का कभी भी आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, एक टर्म यूज होती है जैसे फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर, FT, यानी कि वो जो बंदा है ना वो एंड टू एंड है, यानी कि वो प्रोग्रामर भी है, ठीक है, यानी कि वो प्रोडक्ट इंजीनियर भी है, अच्छा, फिर वो क्लाउड आर्किटेक्ट भी है, अच्छा, यानी कि उसने प्रोडक्ट बनाई, जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, यानी कि मैं माइनस यूज कर लूँ, मैं रेपलिट यूज कर लूँ, कर्सर क्लड यूज कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो वो आपको कंप्लीटली मतलब कि प्रोडक्ट बना के आपको दे देगा, ठीक है, और वो हम डिप्लॉय कर देंगे जी। अगर तो मेरा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपीरियंस अच्छा है, क्लाउड का थोड़ा बहुत मुझे पता है, सही, तो ये अपॉर्चुनिटी मतलब कि इन अ सेंस वर्ल्ड वाइड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप अभी भी कह रहे हो कि सऊदी अरेबिया के अंदर ये मार्केट गैप है क्लाउड के अंदर, राइट? अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये कंफर्म करनी है, हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ये मैंने वैसे जनरल कन्वर्सेशन किया है फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर के बारे में। मैं खुद पर्सनली सोचता हूँ कि यार यहाँ पे अभी मार्केट बहुत पीछे है अभी, बाकियों की नहीं। मैं इवन के इसको यूएई से भी कंपेयर करूँ, ये तकरीबन 5-10 साल पीछे है, ठीक है, ये तो अभी ग्रो करना शुरू हुई है। जैसे आपने बात की 2017 के बाद से इन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा क्लाउड की तरफ मूव करते हैं। अभी भी आई पर्सनली फील के काफ़ी कंपनीज ऑन प्रेमिसेस ही रहना चाहती हैं, उसकी वजह ये है द सिक्योरिटी रीजन, राइट? देखो, जब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आ जाता है ना, सही है, तो फिर कंपनीज को मूव करना पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह ये है, अब अगर AWS आके बिलियंस इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अगर Azure आके बिलियंस आप इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो विदाउट एनी एश्योरेंस नहीं कर रहा होगा, नहीं? अगर इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही हैं और कंपनीज आ रही हैं, वो आने से पहले उन्होंने अपना बिजनेस यूज केस देख लिया होगा कि अगर मैं यार 5 बिलियन यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या रेवेन्यू भी जनरेट होगा कि यहाँ से नहीं होगा रेवेन्यू जनरेट, ठीक है। उन्होंने कंपनीज की यहाँ पे मार्केट में पहले असेसमेंट की होगी, अपने अलाइन किया होगा अपने आप को गवर्नमेंट्स के साथ कि यार आप यहाँ गवर्नमेंट ने ऑफर किया हुआ है, आप बिजनेस आप आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको बिजनेस देंगे। सो दिस इज हाउ बिजनेस वर्क, इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस। ऊपर लेवल पे तो बिजनेस हो रहा है ना, हम यहाँ पे टेक्निकल काम, हम वो वर्कर है, बिल्कुल, हम मजदूर हैं, नहीं? तो मजदूरों को इससे कोई इतनी डीप टेक्निकल नहीं जाना चाहिए कि यार कि वो बिल्डिंग बन रही है या नहीं बन रही,
हाँ। बिल्डिंग्स बन रही हैं दुनिया में, बिजनेस आ रहा है, कंपनीज आ रही हैं। अगर 100 में से 10 कंपनीज नहीं भी जाना चाह रही, लेट्स सपोज, ठीक है, सो दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट ओवरऑल मार्केट। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल करता हूँ, आप जी। क्लाउड के बंदे हैं, मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी सोच रही है कि हम किस क्लाउड पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करें। ठीक है। ठीक है, हमारे पास अभी 3 ऑप्शन, अलीबाबा हो गया, गूगल क्लाउड हो गया और एप्पल हो गया। ठीक है, आप कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक बताएं, ठीक है, कि मुझे किस पे डिप्लॉय करनी चाहिए, और ऑब्वियसली हर चीज़ के लिहाज से जो भी यूज़ केस बनता है आपके मुताबिक। टू बी ऑनेस्ट, एज यू ऑलरेडी मेंशन दैट कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। फिर आप एक अपनी कंपनी में असेसमेंट करते होगे या क्लाउड रेडीनेस कि मैं ये एप्लीकेशंस या मैं कितना क्लाउड के लिए रेडी हूँ। मतलब जो भी कंपनी आएगी, जो भी हाइपर स्केलर आएगा, पहले वो क्लाउड रेडीनेस की असेसमेंट करेगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास इन हाउस रिसोर्सेज हैं जो कैपेबल हैं टू बिल्ड योर एप्लीकेशन ऑन AWS, और AWS आपको कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी दे रहा है। ठीक है, आपको बेनिफिट्स भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो तो किंगडम से बाहर हो गया डेटा। नहीं, AWS आएगा ना, वो अच्छा जब वो आएगा, जब आएगा। अच्छा अभी के अभी- लिए अभी अभी के मेरे पास AWS की ऑप्शन नहीं है। अभी आपके पास गूगल की ऑप्शन Option है, है, ठीक है, और एप्पल की ऑप्शन है, और अलीबाबा की Alibaba। ऑप्शन है। तो बेसिकली विच वन इज द बेस्ट, हाँ। मतलब कि आप क्या रिकमेंड करोगे? हाँ, मैं आपको उसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है। देखो, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड किस टाइप का है। ठीक है। ठीक है, अब आपका वर्कलोड है जैसे लेट्स से मिलियन में ट्रैफिक आएगी, मिलियन में यूजर। हाँ हाँ, लेकिन वो किस किस्म की ट्रैफिक आएगी ना, वो Let's मैटर say करता है। डाटा, finance। जैसे आपका बिग डाटा है, ठीक। डेटा लेक्स हैं, ठीक ठीक है, है। सर्च क्यूरीज हैं, आपके है। कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है, तो उसमें एक्सपर्टीज गूगल की हैं। ठीक ठीक है, है। तो डेफिनेटली आपको गूगल अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस तरह ओरेकल की, जैसे आपके पास ERP आपको सोल्यूशन चला रहे हो, तो ओरेकल का अपना एक ERP सोल्यूशन है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ओरेकल पे जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अलीबाबा की अपनी एक्सपर्टीज है। तो डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ अ सोल्यूशन और व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू वांट टू माइग्रेट। दिस इज फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, फिर फैक्टर है कॉस्ट का भी है। मतलब ऑलमोस्ट सारे क्लाउड्स आपको सिमिलर काइंड ऑफ सोल्यूशंस और सर्विसेज देते ही हैं। ठीक है, तो आपका अगर कॉस्ट लिमिटेशन भी हैं तो फिर आप उस पर जाएंगे। बेसिकली जब आप RFP रिलीज करते हो, कोई कंपनी RFP रिलीज करती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, तो उसमें वो एक 2 चीज़ें होती हैं। एक कि आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो रिक्वायरमेंट जाएंगे 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स को, वो तीनों रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। आप देखोगे कि ये रिक्वायरमेंट मतलब कौन सी जो क्लाउड प्रोवाइडर है ये बेस्ट मीट कर रहा है मेरी रिक्वायरमेंट्स को। फिर लेट्स सपोज आपने 2 शॉर्टलिस्ट कर लिए, फिर आप जाएंगे कॉस्ट पे कि कौन मुझे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे रहा है, एंड देन यू विल सेलेक्ट योर हाइपरस्केलर। ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय रिकमेंडेशंस। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सरप्राइजिंगली अलीबाबा क्लाउड, जी, यानी कि जो हम नाम ज्यादा नहीं सुनते पाकिस्तान में, बिल्कुल। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो अलीबाबा कैसे, मैंने सुना है कि यार वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के साथ अलाइन है, या ऑब्वियसली मुझे भी कुछ सर्टिफिकेशंस अलीबाबा के अंदर कर लेनी चाहिए, राइट? हाँ, बिल्कुल कर लेनी चाहिए सर्टिफिकेशन अलीबाबा के अंदर। यानी कि एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। बेसिकली अलीबाबा आप कह सकते हो एशिया स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर है। अच्छा। मतलब चाइना से उन्होंने स्टार्ट किया है, एक सऊदीया में उनका रीजन है, 2-3 जगह उनमें और उनके रीजन है। तो आई विल कंसिडर हिम एशिया स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है। वो डेफिनेटली आप अगर सऊदी मार्केट में तो आपको सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड नाउ बिफोर इफ यू हैव टू get account or to provision your resources or to access the cloud, there was Alibaba Cloud.sa. Okay. Now they moved to SCCC.sa. Okay. SCCC. SCCC because Saudi Cloud Computing Company is a owner of that cloud. Okay. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि SCCC सऊदी STC solution, सॉरी STC की एक सब्सिडरी है, लाइक STC solution, SCCC. तो बेसिकली दे हैव रिलेशंस, दे आर ब्रिंगिंग द बिजनेस, दे आर ऑन द फ्रंट। या मतलब कि गवर्नमेंट मिडल वेयर है। लेट्स से अगर मैं गूगल क्लाउड भी परचेज करता हूँ ना यहाँ पे बैठ के, तो मैं अपनी कंपनी प्रोफाइल सारा डाटा अपलोड करता हूँ, तो दरमियान में गवर्नमेंट की तरफ से जो वेंडर है ना, मैं उनके साथ अलाइन हूँ, मैं डायरेक्ट गूगल क्लाउड के साथ अलाइन नहीं हूँ। जैसे CNTXT कॉन्टेक्ट्स, वो बेसिकली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक। बेसिकली यहाँ
जो सऊदी क्लाउड मार्केटिंग है ना, इनकी इसकी एक अपनी डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो हर का जो हाइपर स्केलर है उनके आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट। ठीक है। गूगल का डिस्ट्रीब्यूटर है कॉन्टेक्स्ट, AWS का डिस्ट्रीब्यूटर है रिडेंटन, and there's one more company I'm forgetting that. I really apologize for that. And Alibaba को जो है अपना बिजनेस कर रहा है through SCCC, ठीक है। So they are, you can say, the distributors. Basically why these distributors are to make the procurement process easy. सही है। आपकी RFP आएगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स कॉन्टेक्स्ट को जाएंगी, कॉन्टेक्स्ट रिप्लाई बैक करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और इन बीच के दरमियान पार्टनर्स भी हैं, लाइक देयर आर बिग पार्टनर्स एज वेल, राइट। ठीक है। अब फर्स्ट करो एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसका बिल है 100K, लेट्स सपोज, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, 100K। तो गवर्नमेंट कंपनी, अब हाइपर स्केलर जो है उनको मंथली उनकी जो इनवाइसेस टर्म्स है ना वो ईच मंथ है। अब गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनीज कैन नॉट पे ईच मंथ एंड दे कैन नॉट पुट देयर क्रेडिट कार्ड्स ऑन द गूगल क्लाउड टू पे देयर इनवाइसेस, so they need someone in the middle who can pay for their invoices for 3 months, 4 months, 6 months, and then they will pay for this 4 to 6 months to the partner or to the distributor, ठीक है। So इस procurement gap है ना जो मार्केट में, इस procurement gap को खत्म करने के लिए हाइपर स्केलर्स बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स लेके आए हैं और डिस्ट्रीब्यूटर फिर पार्टनर्स को लेके आए हैं, ठीक है। अच्छा, AI की इन्वॉल्वमेंट कैसी है यहाँ पे सऊदी अरेबिया? Saudi Arabia is going to become a leader, you know, in AI hub. It's going to AI become hub. AI Yes, in GCC. that's why they built a very big company, Human. Okay. They are building their data center. They are bringing the servers to host the LLM models and Okay. AI solutions. Congratulations यार, आपको PR मिल गई। Thank you so much. Thank you so much. This is also, Exactly. एक मोटिवेशन हो जाता है जो पाकिस्तान से लोग क्लाउड आर्किटेक्ट्स हैं आना चाहते हैं। मेरा कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, 13 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, ठीक है। 13 पर उसमें से 7 इयर्स एक्सपीरियंस सऊदी अरेबिया का और 4 ईयर एक्सपीरियंस 6 ईयर एक्सपीरियंस जो मेरा है पाकिस्तान का है। तो आफ्टर 7 इयर्स आई एम एबल टू अचीव द PR। But 13 years, it's a good experience. Good experience, to be honest, but if you have a 13 year experience in Pakistan, that's why I'm motivating that. That means I need to die. Yeah, that's why I'm motivating the people in Pakistan watching me. Okay, that if you have a 5-6 experience, give a one chance to yourself. So what's the pro and cons of the PR? There's no cons, all pros. No, bro. Yeah, really. There's no cons. See, in Saudi Arabia, if you are, as you, Okay. if you are doing a job and you want to bring your family, you have to pay a family on permanent visa. You have to pay 400 riyal per person of your family. Yeah, for the time being, yes. I have Without PR. Yeah, I have 3 kids and 1 wife. Only 1 wife right now. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So that means you are paying Around- annually tax more than 20,000. Exactly. Okay. So now I can save this tax. I'm not paying this tax anymore. Nothing. Nothing. Zero. Zero. No. Really? For the PR, how much you have pay? Only 4,000 to get the PR. And for the renewal, Nothing for 5 years. for 5 years. After 5 years, I need to pay again 4,000 khalas. To be honest, it's not clear to me right now. Okay. Maybe if I am able to get a lifetime PR, maybe I would not. I don't need to get, but I have to renew. Like if I go and I would like to renew one time, I think there's only one time you can renew. Then I have to definitely pay. I will apply. I think I will apply for renewal. I have to pay for 4,000 only. So in what's 5 years, Okay, what's the criteria to get the PR? for technical peoples, there are different categories of the PR. Okay. For technical peoples, there is a category special talent. Under special talent, there are 2 subcategories: researcher base and healthcare and scientific base. Okay. Researcher base, yes, your salary should be 14,000, and Okay. you have 3 research papers, and you are participating in research. Or even, to be honest, if you are not participating, you have a good company. You are in your recommendation letter while applying the PR, you portray yourself as a researcher, and you have 3 research papers. You have a chances to get the PR. Okay. This is first category. I know someone. Yeah. Yeah, someone get it, Yes. as you know. Yes. The other category is
healthcare incentive. If you are a doctor and if you are an IT guy, like I am a cloud architect, I can apply, but the minimum requirement is salary 35,000 होनी चाहिए आपकी. Okay. 35,000 मिनिमम है, प्लस हो सकती है. Okay. ठीक है, 35,000 सैलरी हो आपकी, और आपकी जो कंपनी है वो वाइट लिस्टेड हो. Most of the companies are whitelisted now, and if any company is not whitelisted, they can submit their application to become a whitelisted in the PR. Okay. Okay. Whitelisted होनी चाहिए, आपके पास 35,000 सैलरी होनी चाहिए. You should have a good experience, like at least 7 years plus. Okay. Because ये यार मैं यहाँ क्लियर That means जिनका 7 साल से कम एक्सपीरियंस है उनको PR नहीं मिली. देखो क्यों नहीं मिलती, अच्छा. क्योंकि उनका एक मिनिमम स्कोर भी है. अगर किसी की 35,000 सैलरी है, इट्स नॉट मस्ट कि उसको PR मिल जाएगी, उसके पॉइंट्स भी स्कोर होंगे. ठीक है. आई हैव माई फ्रेंड, फर्स्ट टाइम हिज PR वाज रिजेक्टेड, ओके. एंड रीजन कि उसके पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे. ठीक है. ही हैज अ गुड सैलरी बट हिज have a not good experience or a longer experience. Experience more than 5 years at that time. Okay. More than 4 or 5 years. Okay. तो उसकी उस टाइम रिजेक्ट हो गई थी. You are not meeting the scores. So if your experience is more than 6-7 years, you are good to go and you apply. So how much score should be like? They have their own system, to be honest. They are. Tell us, means let's say 10 out of 10, how much I need to. I don't have to tell, to be honest. I don't know. I have in my WhatsApp group, some people are giving some his own ideas, or maybe they get some from somewhere, but there is no official. As per my understanding, there is no official documentation or listing by the PR to give you the details about the scoring. But there is some cons. I know. Let's say. What are the cons? Let's say आपके पास PR है. Yes. ठीक है, alhamdulillah. So when I will switch to another company, it should be whitelisted for the PR. First of all. The second thing, आपकी सैलरी 35 से दोबारा कम ना हो. देखो ये जो है ना, ये सारी गॉसिप्स हैं. अच्छा. These are all gossips. Someone tell me यार. Really. These are the gossip. मैं भी आपको शायद यही बताने वाला था. अच्छा. But there is no official confirmation. There is no official documentation. Okay. Nobody can give me this link, the link that if you are moving, if you get a PR and you will move to a company which is not whitelisted, your PR will be revoked. Okay. There is no official documentation because once the PR issue, my card is not with me. Okay. जब आपको कार्ड इशू होता है तो उस पे एंड जो एक्सपायरी डेट है वो 5 साल बाद की है. मेरे कार्ड पे 5 साल बाद की एक्सपायरी डेट है. मुझे 2025 में मिली है, तो मेरी एक्सपायरी डेट 2030 की है. अच्छा, ये PR मिलने के बाद कंपनी को भी तो फायदा हुआ है. एग्जैक्टली, कंपनी को भी फायदा हुआ है. कंपनी को कोई टैक्स ही नहीं पे करना. कंपनी को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा. मैं कंपनी को मेरा काम रिन्यू नहीं करना पड़ रहा. और मुझे ये फायदा हुआ है कि अब मैं जब जाऊँगा पाकिस्तान या मुझे. So how I know, let's say I'm switching to another company, how I know कि ये PR में white label है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. आप PR की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे डिटेल्स में जाओगे. ठीक है, डिटेल्स में वाइट लिस्टेड है, उसको PDF आ जाएगा आपके पास, उसमें सर्च करो. अगर वो वाइट लिस्टेड है तो, अगर नहीं है तो नहीं. सही है, ठीक है. यार एक्चुअली मैं अभी तक ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. क्या कंफ्यूजन है? यार कंफ्यूजन ये है कि I'm motivating to youth a lot. Sometimes I feel personally कि यार मैं कुछ ज्यादा ही गलत मोटिवेट कर रहा हूँ. No. ठीक है, हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको यही बता रहे हैं कि मार्केट बड़ी बूम कर रही है. बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल. लेकिन आई पर्सनली फील कि ऐसा कुछ नहीं है अभी. नहीं, ऐसा है. मुझे आप सेटिस्फाई कर दें. हाँ, बिल्कुल ऐसा है. देखो, बिल्कुल ऐसा है. मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था. क्या? कि कोई मुझे अपने सर्कल में, आपको यहाँ 3-3.5 साल हो गए हैं. हाँ. कोई अपने सर्कल में कोई एक ऐसा दोस्त बताएं जो पाकिस्तान से आया था आजाद वीजा लेके, एंड यू फील योरसेल्फ कि ही इज अ टैलेंटेड पर्सन एंड ही हैज एक्सपीरियंस, ही इज अ गुड टेक्निकल पर्सन. ठीक है, और वो टैलेंटेड आदमी था और उसको जॉब नहीं मिली और वो बगैर जॉब के यहाँ से चला गया. वन एग्जाम्पल. उनको जॉब मिली. ठीक है, उन्होंने जॉब की. हाँ, उन्होंने जॉब की, लेकिन अभी वो जॉबलेस है. जॉब की. देखो, मुझे लगता है कि अभी मार्केट ना. जॉबलेस क्यों है? ले ऑफ हो गए ना. देखो, अब इसमें 2 चीजें हैं. आपने अपने आप को जो है ना कभी भी रिलैक्स नहीं होने देना लाइफ में. हाँ. सही है.
इफ यू आर रिलैक्स, इफ यू आर सिटिंग डूइंग नथिंग स्लीपिंग, देखिए ये लाइफ नहीं है। ट्रू ना, आप ये मानते हो ना? अगर आप उन्होंने एक एफर्ट की, यहाँ आए, उनको जॉब मिली, अब उनको अपने आप को इम्प्रूव करना था उस जॉब के साथ साथ, अब इस मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना था। राइट। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में अब जो है कंपटीशन भी ज्यादा है और एक्सपर्टीज भी आ रही है। राइट। ठीक है, बहुत सारे जैसे इंडिया से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो जैसे आपने खुद बताया कि आपके पास कोई ऐसी एक एग्जांपल भी नहीं है जो बगैर जॉब के यहाँ से वापस चला गया हो। ठीक है, जॉब मिली है, जॉब थी यहाँ पे और जॉब है, लेकिन वो उस अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि मैं इस पे एग्री करता हूँ, यानी कि आपने अपने मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो फिर हमने वो पुराना सॉफ्टवेयर हटा दिया, न्यू बंदा ले आए। बिल्कुल। अगर आप फर्ज करो उनको जॉब मिली तो उनको उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना था, नॉट टू एज अ रिलैक्स देमसेल्व्स। उनको ये देना था कि मुझे अब मेरे पास जो है ना एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया है। ठीक है, मैं अपने आप को यहाँ सेटल कर सकता हूँ। मतलब एक बंदा अपनी एक इन्वेस्टमेंट लेके आया था और फिर उसको जॉब मिल गई, अब उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया है, अब उसके पास उसको एक रास्ता मिल गया है, अब उसने उस रास्ते पे अपने आप को और एफर्ट्स करनी है, चलना है उसको, आप अपने आप को आगे बढ़ाना है। अगर आप एक कंपनी भी खड़ी करते हो, आप एक कंपनी बनाते हो, आप अपनी कंपनी बना रहे हो एक, ठीक है, और आपके पास फर्स्ट ईयर रेवेन्यू आया है और नेक्स्ट ईयर आप न्यू सर्विसेज नहीं लॉन्च करते हो, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हो, अपने SLAs, अपने KPIs इम्प्रूव नहीं करते हो, यू विल डाई, योर कंपनी विल डाई, another company will take over. This is same applies on humans. अच्छा, किस तरह के सेक्टर्स में आपको लगता है कि जैसे एविएशन होगी, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, बैंकिंग, टूरिज्म, स्मार्ट सिटीज, हर जगह अपॉर्चुनिटीज है क्लाउड के अंदर, हर जगह अपॉर्चुनिटीज है क्लाउड के अंदर। देखो, नाउ एवरीथिंग इज डिजिटलाइजेशन। ठीक है, यूएई की एग्जांपल ले लें आप, यूएई नाउ बिकम अ पेपरलेस। ठीक है, अब पेपरलेस कैसे हुए हैं? उन्होंने अपने आप को पेपरलेस कैसे किया? न्यू चीजें अडैप्ट करके, एप्लीकेशंस, bring the applications over the internet in your mobile। अब आपका मोबाइल सब कुछ है, ठीक है, वो चीज every service is available in जैसे mobile। अपशर है, अपशर एक टोटली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑल द एंटिटीज आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। एग्जैक्टली, और आप एक ही ऐप में अपना सारा डाटा देख सकते हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जो भी किया आपने सऊदी अरेबिया के अंदर, कुछ भी गलत या अच्छा, वो आपको शो हो जाता है अपनी ऐप के अंदर। सो इट्स गुड, क्वाइट गुड कि यार सारी चीजें, सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अब ऑनलाइन है तो कहाँ पड़ी हुई होंगी? या तो क्लाउड पड़ी होंगी या उनके अपने डाटा सेंटर में पड़ी होंगी। तो उनको क्या चाहिए? क्लाउड चाहिए, क्लाउड इंजीनियर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, एप्लीकेशन इंजीनियर चाहिए। ये सारी जो है टैलेंट है हमारे पास। अच्छा, मैं किस तरह से ना कंपनीज को टारगेट कर सकता हूँ? कैसे मैं सर्च करूँ कंपनीज को? यार मैं इसको ईमेल भेजूँ या इस कंपनी में जो काम करता है उसको मैं कॉन्टेक्ट करूँ? क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है आपको जो बहुत कम चांसेस हैं कि आप एक प्रोसेस से गुजरो। मतलब कि मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया, किसी ने मुझे कॉल की, इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, मैं गया, इंटरव्यू क्रैक किया तो मेरी जॉब लग गई। लेकिन ये बहुत कम चांसेस है। आपको मोस्टली जो जॉब मिलती है, आप इस कंपनी में काम करो, बेहतरीन है, मैं जानता हूँ किसी को, मैं लगवा देता हूँ, उसका इंटरव्यू क्रैक करवाया, उसको वहाँ पे लगवा दिया। क्रैक, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। देखो, क्रैक जो होता है ना, क्रैक, ये इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, आप एक अच्छे एप्लीकेशन डेवलपर हो, ठीक है, मैंने आपका काम देखा हुआ है और मुझे पता है कि ही हैज अ पोटेंशियल। सो डेफिनेटली जब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी या मेरी रेफरेंस, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, मुझे पता चलेगा जी इस कंपनी में या मेरी कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी आई है, सो आई विल प्रेफर यू। हाँ, बिल्कुल ऐसे सही है, तो आई विल प्रेफर यू, आई विल लिंक यू। ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने खुद क्रैक कर लिया आपने, यार वो तो आपका 90% काम हो गया है। हाँ, 10% रह गया, वो 10% बेस्ड ऑन योर टैलेंट। हाँ यार, आपके एक्सपीरियंस पे है, वो हो जाएगा। देखो तो पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है ना। मैंने खुद पर्सनली फील किया कि यार सऊदी अरेबिया की मार्केट भी ऐसी है। आज HR अगर लिंक्डइन में पोस्ट लगा रहा है, उस कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसको पता चला भाई HR ने, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर कोई ओपनिंग है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपना कोई रेफरेंस, कोई पाकिस्तानी पकड़ूं या मैं कोई इंडियन, मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको पकड़ूं, उसकी CV कम से कम आगे तक दे दूं। बिल्कुल, ताकि उसको अगर उसका उसमें टैलेंट है ना, आपने उसको एक रास्ता दिया है। जो नया बच्चा आएगा ना, वो क्या करेगा?
नया बच्चे को दमाने का कह नहीं है ना, जो फ्रेश ग्रेड है। नहीं हम तो कह रहे हैं मतलब कि वो चीज़ है। बच्चा जो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हाँ, उसका 5 कोई साल। रेफरेंस नहीं है, देखो उसी को नहीं जानता। उनको भी तो जॉब मिली है ना, खुद कह रहे हैं ना। लोग आ रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको जॉब मिली है। देखो ऐसा नहीं कि जॉब यार नहीं मुझे मिली। लगता है वो मार्केट उस वक्त अच्छी थी, अब नहीं है इतनी। देखो अब करंट एआई की भी इवॉल्वमेंट हो गई है, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर। देखो, मैं थोड़ा सा मैं से डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। वो डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि ये सऊदी अरब में ना बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज भी हैं, लेकिन आपको पता है कि बिलियंस का जो है रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान के यहाँ जहाँ सब पैसा सेव करना जा रहे हैं। यहाँ पे कंपनीज के पास बजट आता है और कंपनीज ने वो बजट कंज्यूम करना होता है, ठीक है। और जब वो अपनी टीम्स बना रहे होते हैं ना, जैसे अगर लेट्स सपोज कोई राज्य बैंक है या कोई और बैंक्स हैं या कोई बड़ी इंटरप्राइजेज हैं, तो वो डेफिनेटली एक बंदे पर रिलाई नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उनका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, लेट्स सपोज क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हर बंदे का अपना रोल है, एप्लीकेशन वाले बंदे का अपना रोल है। अच्छा, यहाँ पे ये बेस्ट चीज है। वहाँ पे पाकिस्तान में तो एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा है। पाकिस्तान में यहाँ पे एक रोल, हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। Exactly. यहाँ पे कंपनीज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम क्लाउड की बात करें तो सिक्योरिटी की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक है। सही है। तो व्हाट डू यू थिंक, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी का क्लाउड के अंदर? सिक्योरिटी का क्लाउड के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हर चीज के लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी हर जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सही है। सिक्योर जब आप कहते हैं ना सिक्योरिटी तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10 अगर जॉब क्लाउड के अंदर है तो 10 ही जॉब साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। अगर 10 नहीं भी है ना तो 6 या 7 साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इशू है साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के लिहाज से कि साइबर सिक्योरिटी में 100% साउदीजेशन है, ठीक है। 100%। मतलब जो साइबर सिक्योरिटी फ्रंट एंड्स है ना, अच्छा, पहले ही हमें एक्सप्लेन करें, मुझे नहीं पता कि सऊदीलाइजेशन है क्या। वैसे ये सऊदीजेशन है मेरा ख्याल। जी, सऊदीजेशन। तो मतलब कि ये है क्या, इसमें क्या है? अच्छा, VN 2030 इन अ सेंस ये है कि जो ऑब्वियसली एक नेशन करती भी है। अगर पाकिस्तान में होता और पाकिस्तान का एक VN 2030 होता, वो ये होता कि यार हमारी जो यूथ पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट हुई है, उनके लिए कोई एक वे निकाला जाए, उनको एक VN दिखाया जाए कि यार इस बात को फॉलो करना है। ठीक है, इस बात को फॉलो करने के लिए क्या क्या अचीवमेंट होनी चाहिए आपकी। अगर मैं सऊदी अरेबिया को देखता हूँ, आए दिन कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, ठीक है। ईजी टू, ये मैं सऊदीज के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईजी टू कि अगर मैं कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ईजी फॉर मी इन्वेस्टमेंट रेज करना, ठीक है। गवर्नमेंट खुद काफ़ी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ और मुझे पहले ही जॉब मिल गई एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी के साथ, ठीक है। ये है VN 2030 और सब सऊदी को पता है कि हमने क्या करना है अगले 5 सालों के अंदर। यानी कि कोई ऐसा सऊदी नहीं है जिसको नहीं पता, ठीक है। अब जो एक्सपेक्ट्स हैं वो तो रगड़ा खाएंगे इसमें कि नहीं खाएंगे? नहीं, देखो आपकी एक्सपर्टीज जो है ना, यानी कि किस तरह की एक्सपर्टीज हो तो मैं अगले 10 साल या 15-20 साल, मैं तो चाहता हूँ मैं यहीं पे मरूँ, ठीक है। तो इस लॉन्ग रेस में मैं देखो कैसे survive कर सकता इट्स हूँ? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन के क्योंकि मुझे फ्यूचर में आई कैन नॉट सी इन द फ्यूचर। ओके, डे बाय डे जो है ना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। द बेस्ट मेथड इज टू कीप अपडेटेड योरसेल्फ विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक है। आज से 2-3 साल पीछे चले जाएं तो लोग चैट GPT या क्लाउड नहीं यूज कर रहे थे। क्या आप यूज कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। मैं यूज करता, मैं यूज नहीं करता। लेकिन आज मेरी सारी पावर पॉइंट्स, मेरी सारी एक्सेल AI बना के, क्लाउड बना के दे रहा है, ठीक है। और जो काम मुझे नहीं, उससे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ना। जो काम आप 2 दिन लेके काम करते थे, आपने 2 घंटे में काम शुरू कर दिया। तो मैंने अपने आप को आप उसी हिसाब से आपके जो AI की मार्केट बिल्ड हो रही है, AI एप्लीकेशन बिल्ड हो रही हैं, लोग जो है ना AI एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपने भी अपने आप को जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ खुद को इवॉल्व करना है, अपने आप को अपडेट रखना है टेक्नोलॉजी के साथ, जो नई चीज़ें आ रही हैं,
ठीक है यार एक ना इंसान की एक वो जो होती है ना एनर्जी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है उम्र के साथ। बिल्कुल। अभी मैं 30 का हूँ, तकरीबन 29, आप 35 प्लस हैं। हाँ। जब आप एज पे पहुंचोगे 40, तब nothing। देखो, हाँ बिल्कुल गुड तो इन अ सेंस आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब कि मुझे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मुझे कहीं पे पैसे लगाने चाहिए, मैं जॉब देर तक नहीं कर सकता, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट्स योर सजेशन? देखो, बिजनेस का तो कोई कंपैरिजन ही है ना जॉब से। ठीक है। ठीक है, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एंड जॉब। बिजनेस इज बिल्कुल एक टोटली सेपरेट थिंग है। आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो यू शुड टेक अ चांस। तो आपका यानी कि फ्यूचर क्या, आपका क्या प्लान है सऊदी अरेबिया के अंदर? टू बी ऑनेस्ट, मेरा तो प्लान यही है कि टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट माय ओन टेक। तो आपने क्या प्लान बनाया है कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ अभी? क्योंकि मुझे ऑडियंस देखती है तकरीबन 40% सऊदी अरेबिया से, वो भी अभी देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार हम भी आईटी में अभी जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कैसे स्टार्ट किया जाए? मतलब यानी कि मैं जो भी करता रहूँ, या मुझे कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, मुझे अगर कोई इन्वेस्टर चाहिए, या मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए, किस तरह से, मतलब कि क्या करूँ मैं बड़ा परेशान हूँ। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं ना तो आई विल नॉट रिकमेंड टू, मतलब आपका जो है ना टोटल डिपेंडेंसी आपकी जॉब के ऊपर है, आपकी फैमिली है, सही है। तो जॉब के साथ तो बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपके पास इतनी सेविंग है कि आप एक चांस ले सकते हैं तो आपको चांस लेना चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की वो एक पूरा एक प्रोसेस है यहाँ पे। यानी कि जॉब के साथ मैं कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? करवा सकते हैं आप, बिल्कुल। यानी कि मैं अगर कंपनी भी रन करता रहूँ और जॉब भी करता रहूँ, देखो पॉसिबल? हाँ, देखो, कंपनी आप रजिस्टर करवा सकते हो अपने, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है कि आपकी कंपनी पाकिस्तान में हो, ठीक है, वो यहाँ किसी और कंट्री में हो, उसकी एक सब्सिडरी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। फिर उसके में आपको एक सऊदी रखना पड़ेगा, सऊदीजेशन को कंप्लीट करने के लिए उसकी ज़कात ज़टका ये करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जैसे बताया था अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर 100% और भी कोई फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपकी क्लाउड की फील्ड के अंदर सऊदीलाइजेशन किस फील्ड के अंदर, फील्ड किस तरह की फील्ड के अंदर, यानी कि आपने ज्यादातर सारी फील्ड में सऊदीजेशन है। मेरा नहीं ख्याल कोई फील्ड होगी जिसमें सऊदीजेशन, जैसे क्लाउड के अंदर मल्टीपल, जैसे मैंने बात की डेवलप्स इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है, या नेटवर्किंग के अंदर हम चले जाएं, किसमें आपने ज्यादा सऊदीज देखे हैं? या मैं उसमें ना जाऊँ, किसी और में चला जाऊँ, या मैं स्विच कर लूँ बाद में? या आपने एक्सपर्ट्स किस में देखे हैं? इंडियंस, इजिप्शियंस की, जैसे हम तो अरबिक स्पीकिंग नहीं है, ठीक है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इट्स रियली क्वाइट डिफिकल्ट। तो लेकिन मैं अगर किसी सूडानी के साथ बैठा हूँ, ऑब्वियसली वो अरबिक स्पीकिंग है, इजिप्शियन या लेबनीज, ठीक है, या जोर्डेनियन, दे आर रियली स्मार्ट, फिलिस्तीनी माशाल्लाह, ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में तो मैं फीका हूँ ना? नहीं, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। हाँ, उनको एक लैंग्वेज का प्लस पॉइंट है, मतलब मोस्टली यहाँ पे जब मीटिंग्स हो रही होती हैं, आप लोकल के साथ मीटिंग कर रहे हो, तो दे स्टार्ट स्पीकिंग इन अरबिक एंड इवन हैव यू, आई एम श्योर दैट यू हैव फील दैट, राइट। सो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी होती है, ठीक है, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, बट इट्स नॉट समथिंग यू कैनॉट कम्पीट विद इट। कंपनी आपके साथ इरिटेट नहीं होती? नो। अच्छा, अब देखो, आप कंपनी में तब तक हो जब तक आप कंपनी की जरूरत है। हाँ, वैल्यू ऐड कर। सबसे पहले आप कंपनी में हो तो सबसे पहले आपने अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, ठीक है? यार जाहिर बात है, मैं किसी कंपनी में अगर काम करूं, मैं वैल्यूएबल हूं तो अब तक सर्वाइव कर रहा हूं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप एक टेक्निकली एक्सपर्ट हो क्लाउड के अंदर, आपके कंपैरिजन में कोई इजिप्शियन बैठा, ठीक है, ही इज इक्विवेलेंट, यानी कि वो टेक्निकली थोड़ा सा कम है आपसे। कितना कम है? यानी कि आप 10, 15, 20% कहने कम है, तो एक सऊदी आपको रिकमेंड करेगा या उस इजिप्शियन को? टू बी ऑनेस्ट, ही हैज अ प्लस पॉइंट ऑन लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ मोस्टली जो प्री सेल्स रोल है ना, जो बिजनेस ओरिएंटेड रोल्स हैं, जो मीटिंग्स और कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, तो वो अरबिक स्पीकर रिकमेंड करते हैं, मतलब दे मेंशन इन द जॉब्स यू विल सी दैट अरबिक स्पीकर मस्ट, राइट, ठीक है, वो एक उसको एज है। बट अगर मैं ऑपरेशन देख रहा हूँ या मैं टेक्नोलॉजी में कोई एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहा हूँ, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी, ऑन द वे यू वर्क, सही है। आपके रिलेशंस कैसे हैं, रिलेशंस आल्सो मैटर, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो मैटर। अच्छा, कुछ कंपनी की ना एक पॉलिसी होती है, जैसे उन्होंने मल्टीनेशनल
लोगों को हायर करना है, जैसे पाकिस्तान से कुछ को हायर किया, कुछ को इंडिया से, इजिप्ट से, सूडान, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, ऐसे ही है, यानी कि उनकी एक पॉलिसी है कि उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज से हायर करना ऐसे ही है है। ताकि वो डिफरेंट माइंडेड के साथ Exactly. उस प्रॉब्लम को देखें और उसको फेस करें, उसको फिर सोल्यूशन निकालें। ठीक है, ऐसे होता है वैसे, आपने रियलाइज किया? हाँ, नहीं है एक्चुअली है ओके, कंपनी में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा है। ठीक है सर, लास्ट कोई एडवाइस? लास्ट एडवाइस टू फ्रेश ग्रेजुएट्स, ओके, मेरी उनके लिए है कि आप जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मैंने एक सफ़र किया है कि लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं कि मेरा कैरियर पाथ क्या है। मतलब आपने इतने सफ़र करने के बाद, अपने माँ बाप का पैसा लगाने के बाद, टाइम लगाने के बाद 4 इयर्स, लड़के को पता ही नहीं होता कि मैंने किस फील्ड में काम करना है। पाकिस्तान में आई थिंक 90% जो लड़के की फर्स्ट जॉब होती है वो उसका करियर डिफाइन कर देती है। अगर किसी को नेटवर्क की जॉब मिल गई तो वो उसी में ग्रो करता रहेगा, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉब मिल गई तो वो उसी में ग्रो करता रहेगा, किसी को टेलीकॉम की जॉब मिल गई तो वो उसी में, और अगर किसी को बेचारे को नहीं जॉब मिली, अगर वो 2 साल नहीं उसको जॉब मिली तो वो कम्प्लीटली, मतलब मेरा ख्याल है उसका करियर डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक तो मेरी एडवाइस तो यही है कि यूनिवर्सिटीज़ को अपना कोर्स भी अपग्रेड करने चाहिए कि मार्केट में इस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में आईटी क्या है, क्या आईटी स्किल्स इन डिमांड है, तो उस हिसाब से लड़कों को जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो देना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लास्ट फाइनल ईयर में होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लड़के को 3rd या 4th सेमेस्टर के बाद ही उस ग्रुप को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सर्च, या स्टूडेंट्स को या टीचर्स को बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि इनका क्या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, फिर उस पर वो रिसर्च करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्किल सेट। और कंपनीज को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे बड़ा मुझे गैप ये लगता है कि जो मार्केट में काम हो रहा है ना, जो कंपनीज को डिमांड है, वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं जा रही, वो यूनिवर्सिटीज़ में दी ही नहीं जा रही। अच्छा, कितने, लेट्स सपोज अगर क्लाउड कंप्यूटिंग किस यूनिवर्सिटी में जो है स्किल्स दी जा रही हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, किस यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में AWS, एज़्योर, अलीबाबा क्लाउड पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में CCNP या CCI या CCNA पढ़ाया जा रहा है, वो एक सब्जेक्ट होगा नेटवर्किंग का, बाकी पता नहीं जो वो सब्जेक्ट्स हैं जो पता ही नहीं है लड़के। आई एम वन ऑफ द that 90% you have explained like कि 90% जो लोग हैं ना उनमें से मैं एक हूँ, ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। सबको अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा भागदौड़ करनी चाहिए, रास्ते खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। ठीक है, एक वो बच्चा होता है जो स्मार्ट होता है, उसको पता है कि वो क्लियर है कि मैंने क्या करना है, गॉड गिफ्टेड है। हाँ आप कह लें गॉड गिफ्टेड जो है ना लोग हैं, कुछ जो अब मैं कहूँगा 5% है। ठीक है, ठीक है, जो इतनी मैच्योर है, इतनी मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी उनकी फैमिली से हाँ, आई है। उनकी फैमिली से ठीक एग्जैक्टली है, वो पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग हैं जिनकी फैमिलीज जो है ना एलीट क्लास हैं, या जिनकी फैमिलीज अपर क्लास हैं, 5 to 10% जिन्होंने अपने बच्चों को वो कैरियर पाथ दिया है, कितनी परसेंट होंगी? हम वही तो मैं कहने लगा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो माशाल्लाह कह लें कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है कि यार हम उनको एक अच्छा माइंडसेट दे सकते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कितने % लोग 2 to 3% होंगे मैक्सिमम। अब इसमें सिनेरियो ये होता है कि 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो स्मार्ट हो गया, ठीक है, जो कि इसको पता है, क्लियर है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि यार वो एलीट क्लास में है लेकिन वो स्मार्ट है, चाहे वो मिडिल क्लास में रहता है। दूसरा जो होता है ना, वो स्मार्ट नहीं होता, वो हार्ड वर्किंग होता है। बिल्कुल ठीक है, जो हार्ड वर्किंग बंदा होता है ना, उसको पता है कि उसको 3 दिन लगेंगे उस चीज़ को पढ़ने में, एनालाइज करने में, याद करने में। लेकिन जो हार्ड वर्क होता है, यानी कि मैंने हार्ड वर्क वाले की बात की, जिसको 3 दिन लगेंगे उसको एनालाइज पढ़ने में और समझने में, लेकिन जो स्मार्ट होगा उसको 1 दिन लगेगा। बिल्कुल ठीक है, दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो स्मार्ट वाले बंदे से, और स्मार्ट वाला बंदा अगर हार्ड वर्क भी हो तो वो तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ना, जो कि होता नहीं है, बहुत कम चांसेस है। वो तो एक नेक्स्ट लेवल लोग बन गए हैं जिन्होंने वाकई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, जो कि 1% में से आएंगे। ठीक है, दुनिया में वर्ल्ड वाइड। तो मेरे ख्याल में यूथ को यानी कि स्मार्ट भी होना चाहिए, स्मार्ट तो होना चाहिए लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है कि आपका कनेक्शन अल्लाह से होना चाहिए।
ठीक है, वो अगर आप मिस कर रहे हो ना, वो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब अपॉर्चुनिटी स्विच कर जाए। आपको नहीं पता कि आज आप कहाँ पे बैठे हैं और कल कहाँ पे हो। बिल्कुल। ये आप भी नहीं सोच सकते थे, मैं भी नहीं सोच सकता था, और अभी आप तो ये भी नहीं सोच कहा है सकते। ना कि मैं तुम्हें रिस्क वहां से दूंगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे ही है। तो मैं तो आप अपनी एग्जांपल ले लें, क्या आपको गुमान था नहीं, कि आप सऊदी आएंगे? मुझे भी गुमान नहीं था कि मैं सऊदी आऊंगा। मुझे ये भी नहीं गुमान था कि यार मैं मतलब अगर ये भी नहीं था कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे। तो आप इतने बड़े चैनल में आ जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, बाय द वे, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे थे ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो जिनको वाकई क्लियर पता है कि उन्होंने लाइफ में क्या अचीव करना है, वो कभी भी ये पॉडकास्ट नहीं देखते। नहीं, मैं मैं डिसएग्री ये करूंगा। चीज़ इसमें, हाँ ठीक है, इन समाओ मैं खुद देखता हूँ पॉडकास्ट, मैं खुद चैनल को, कुछ चैनल्स हैं जिनको मैं देखना पसंद करता हूँ। देखो आप पता क्या, आप कोई भी इंसान अकेला है ना, ही इज नथिंग, वो लोगों से सीखता है। राइट। आप कम्युनिटी से सीखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपकी एक अच्छी कम्युनिटी आपको जो है ना आपको ग्रो करती है। ठीक है, आप अपना आगे बढ़ते हो। अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो तो आप ज्यादा ग्रो करोगे, राइट। क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है। राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने पॉडकास्ट में क्वेश्चन किए, जितने मैंने लिखे हुए थे उनमें से हमने मोस्टली कन्वर्सेशन नहीं की उनके ऊपर। तो मतलब कि मुझे लगा कि इस फ्लो में जाना चाहिए, तो उसी फ्लो में हम गए। इट्स क्वाइट गुड, बड़ा मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मीट करेंगे, और हो सकता है हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सी यू सून।